ये बहुत अद्भुत है। The Bible says when we open His Word, there is light. वचन कहता है कि जब हम वचन को खोलते हैं तो उसमें ज्योति होती है। In our serial study, we are studying the book of Song of Solomon. क्रमवार अध्ययन में जो हम देख रहे हैं वो श्रेष्ठ गीत की किताब है। And today the passage for us is Song of Solomon, chapter 2, verses 1 to 7. और आज जो हमारे लिए देखने मनन का जो विषय है वो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय पहले से 7वें वचन तक है। The book is very, very important because it talks about a heart-to-heart relationship with God. ये पुस्तक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिल से दिल की बात करती है। Since we have fallen in sin and we have lost the glory of God, जैसे हम पाप में गिर गए हैं और परमेश्वर की महिमा को हमने खो दिया है, the heart-to-heart relationship with God is lost by man. जो दिल से दिल का परमेश्वर और हमारे बीच में जो संबंध था वो मनुष्य ने खो दिया है। When we are born again, we are born into the kingdom of God. जब हम फिर से पैदा होते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हैं। Still, we are at times not in a heart-to-heart relationship with Jesus. फिर भी हम दिल से दिल परमेश्वर से संबंध में नहीं होते। Because love needs attention, love needs concentration, love needs attraction, and love needs commitment. प्रेम को आकर्षण की जरूरत होती है, उसको ध्यान की जरूरत होती है और उसमें कमिटमेंट की जरूरत होती है जो कि हमें नहीं होता। When we take religion as a custom and as a practice or as a ritual, at times we lose the heart. जब हम धर्म को एक रिचुअल की तरह लेते हैं तो हम अपने हृदय को खो देते हैं। So coming to God with a heart-to-heart relationship is rising above the religious norms of this world. और परमेश्वर के साथ दिल से दिल के संबंध में हम सारी धार्मिक बाधाओं के ऊपर आ जाते हैं। Whatever is happening in this world in the name of religion doesn't hold any bearing here. और धर्म के नाम पे जो भी इस दुनिया में हो रहा है कोई होल्ड नहीं रखता वो। The only thing that we know is that I love my God and my God loves me. एक इस चीज जो हमें पता है वो ये है कि मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और वो मुझसे प्रेम करते हैं। This love relationship with our Creator is what is ultimately the Lord wants us to ये have. जो प्रेम का संबंध है हमारा परमेश्वर से यही है जो परमेश्वर हमसे अद्भुत रीति से चाहते हैं। Because God is love, He loved us first and we did not love Him first. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसने हमसे पहले प्रेम किया, हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया। Love initiates from God. प्रेम जो है वो परमेश्वर से उत्पन्न होता है। So the bride says here in this book, तो यहाँ पर दुल्हन इस किताब में कहती है, unless that love is evoked in you, unless the love is initiated in you, do not go after it. जब तक प्रेम अपने आप से उत्पन्न ना हो या जागृत ना हो उसे न उकसाएं। For us, it is something beyond us. और ये हमारे लिए क्षमता से कुछ बाहर है। We don't understand when it initiates and how it हम initiates. नहीं समझ पाते कि ये कब शुरू हो रहा है और कैसे शुरू हो रहा है। In interpersonal relationship also, we never dream that we will be attracted to somebody and that suddenly the attraction comes in. आपस के रिलेशन में भी ऐसा होता है कि हम आकर्षित तो होते हैं और अचानक से हमारा उस व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। We never think that this is going to happen, but it happens. हम ऐसा सोचते नहीं कि ये हो जाएगा पर हो जाता है। So it's very clearly, it's very clear to understand that it is initiated by somebody in our life which we do not know about. और हम ये बहुत स्पष्ट रीति से क्लियर है कि ये किसी चीज से जागृत होता है, ये अपने आप से उत्पन्न नहीं होता। So the Shulamite or the bride says that तो यहाँ पे वधू ये कहती है there is somebody who evokes your love, who initiates your love. कि कोई है जो हमारे प्रेम को हमारे अंदर उजागर करता है और जागृत करता है। Just go after it. उसके पीछे चले। Do not try to create your own love towards God. अपने आप से कोई प्रेम को जागृत करने की कोशिश न करे परमेश्वर के प्रति। So a divine love is a love which starts from God, is sustained by God, and is offered to the Lord. तो जो ये परमेश्वरीय प्रेम होता है ये परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है और परमेश्वर से ही होता है और परमेश्वर के लिए ही होता है। We need to understand. हमें ये चीज को समझना है। If you are a religious person, यदि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं and if you have not fallen in love with Jesus, और आप यदि यीशु से प्रेम में नहीं आए हैं, look to Him for an initiation. उसके लिए उसकी ओर देखें कि उस प्रेम को वो जागृत करे आपके। You can never initiate your own love with God. आप अपने प्रेम को शुरू नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए अपने आप से। The Bible says, God says, I have chosen you and you have not chosen me. परमेश्वर कहता है वचन में कि
मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है। I love God. The saint says, I love God because God first loved me. वचन में कहा जाता है कि परमेश्वर ने मुझसे पहले प्रेम किया, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। So we confess that the love initiates from God. तो हम कहते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न होता है। This love which God pours in our lives तो ये जो प्रेम है जो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में देता है, is initiated with our new birth. तो ये जो है ये हमारे नए जन्म से उत्पन्न होता है। Three things that we invariably get through our new birth or through our introduction in Jesus Christ. तीन चीजें जो हमें मिलती है नया जन्म पाने से यीशु मसीह में, वो ये है Love, faith and hope. प्रेम, विश्वास और आशा। A person who is initiated in love by Jesus Christ, who is called by God, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है और उसमें वो प्रेम को जागृत किया है उसने, he has three possibilities in his life. उसकी जिंदगी में तीन चीजों की गुंजाइश होती He है। needs to grow in faith, love and hope. उसको विश्वास, प्रेम और आशा तीनों में आगे बढ़ना है। And if he grows in all these three qualities, और यदि वो इन तीनों चीजों में आगे बढ़ता है he falls in true love with God. तो वो परमेश्वर से सच्चे प्रेम में आ जाता है। And that love which we have for God is above everything. और वो प्रेम जो परमेश्वर का हमारे मन में है वो हर चीज से ऊंचा है। So much so that we are offered as a living sacrifice on the altar of God. ऐसा कि हम परमेश्वर की वेदी के सामने एक बलिदान के रूप में हो जाते हैं। So better evaluate ourselves on the basis of this word. तो हम अपने आप को जांच ले इस वचन के अनुसार। Are we loving God but still are in the worries of this world? हम परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, पर क्या हम अभी भी उन्हीं परिस्थितियों में या उन्हीं परेशानियों में फंसे हुए हैं इस दुनिया की? Does love rule in our lives or worries rule in our क्या lives? प्रेम हमारे जीवन में राज्य करता है या चिंताएं हमारे जीवन में राज्य Does करती हैं? love rule in our lives or ambiguity or confusion rules in our lives? क्या प्रेम हमारे जीवन में राज्य करता है या कंफ्यूजन या तरह तरह के विवाद या ऐसी बातें जो हमें कंफ्यूजन में डालती है वो हम पर राज्य करती है? Do we equally love our Lord or doubt whether He loves me or not? क्या हम परमेश्वर से उसी रीति से प्रेम करते हैं या हम ये शंका में रहते हैं कि क्या वो मुझसे प्रेम करता है या नहीं? Book of Song of Solomon is a very important book. श्रेष्ठ गीत की जो पुस्तक है वो बहुत इम्पोर्टेंट In the olden times when the Jews used to read this book, पुराने समय में जब यहूदी इस पुस्तक को पढ़ते थे they used to say that this is a love story between God, Jehovah and His people. तो वो कहते थे कि ये परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में एक प्रेम पत्र है। And when this book was read, all the people had to stand up on their feet. और जब ये पुस्तक पढ़ी जाती थी तो सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे। With the advent of Jesus Christ and the introduction of church into this world, जैसे यीशु इस दुनिया में आए और कलीसिया इस जगत में स्थापित हुई, this love story is now narrated as a story between Jesus and His bride. तो ये जो पुस्तक है, ये स्टोरी है, प्रेम पत्र जो है, ये यीशु और उसकी दुल्हन के बीच में प्रेम के बारे में दर्शाती है। Jesus says, I have not come to break the law but to fulfill the law. यीशु ने कहा मैं लॉ को तोड़ने नहीं आया पर उसको पूरा करने आया हूँ। So the love which was described between Jehovah and the Jews is now the love which is fulfilled in Jesus Christ for His bride, the church. तो जो प्रेम यीशु परमेश्वर और उसकी कलीसिया के बीच में कहा जाता था, वो यीशु मसीह में अब आकर पूरा हो चुका है। Song of Solomon chapter 2. श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय। Verse 1, I am the rose of Sharon and the lily of the valleys. पहला वचन, मैं शारोन देश का गुलाब और तराइयों में का सोसन फूल हूँ। The Shulamite or the bride says, यहाँ पर वो वधू कहती है I'm beautiful कि मैं सुंदर हूँ because I am liked by somebody. क्योंकि कोई मुझे चाहता है। I can talk of my beauty. मैं अपनी सुंदरता के बारे में बात कर सकती I हूँ। am beautiful. मैं सुंदर हूँ। See, the moment Jesus adopts you, the moment Jesus comes into your life, देखिए, जब यीशु आपको गोद ले लेते हैं और जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाते हैं, you start talking beauty. तो आप सुंदरता के बारे में बात करने लग जाते हैं। Otherwise, you hate yourself because of your ugliness. नहीं तो फिर आप अपने आप को ही बुरा समझने लग जाते हो, आपकी जो भी बुराइयां हैं, आपकी बदसूरती है उसको लेकर। Till Jesus is not in our lives, we look at ourselves as we are ugly people. जब तक यीशु हमारी जिंदगी में नहीं है, हम अपने आप को एक बदसूरत व्यक्ति की तरह देखते हैं। Our songs describe our ugliness. हमारे जो गीत होते हैं वो हमारी बदसूरती को बताते हैं। And our conversation tells that how incapable we are for God. और हमारी जो बातें होती हैं वो ये दर्शाती है कि हम परमेश्वर के
लिए कितने इनकैपेबल है। But the moment Jesus calls us, पर जैसे ही यीशु हमें बुलाते हैं, our language, our narrative is changed. हमारी बातें, हमारे कहने का तरीका बदल जाता है And we say that I am beautiful. और हम कहते हैं कि हम सुंदर हैं। Anybody who loves Jesus जो कोई यीशु से प्रेम करता है loves himself. उस अपने आप से प्रेम करता है, Anybody who doesn't love Jesus और जो यीशु से प्रेम नहीं करता doesn't love वो himself. खुद को प्रेम नहीं कर सकता। He cannot love himself वो खुद से प्रेम नहीं कर सकता, because the love is not, it doesn't exist in him. क्योंकि वो प्रेम उसके अंदर पाया ही नहीं जाता, Because the love is lost because of sin. क्योंकि वो जो प्रेम है वो पाप के कारण खो गया है। But the moment Jesus comes in your और life, जैसे ही यीशु आपकी जिंदगी में आ जाते you हैं, start dealing in love. आप प्रेम से डील करने लग जाते हो। You see your own beauty and you see the beauty of your Lord Jesus Christ. आप अपने आप में सुंदरता को देखने लग जाते हो और अपने यीशु की सुंदरता को देखने लग You जाते हो। also start looking at the beauty in the lives of like-minded people, believers and people of God. आप सुंदरता उन लोगों में भी देखने लग जाते हो जो आपके साथ विश्वासी लोग हैं और आपके समान सोचते हैं। So the pertinent and big question before us today is that are we dealing in love and beauty or are we dealing in ugliness? तो आज जो हमारे लिए बड़ा प्रश्न है वो ये है कि क्या हम सुंदरता और प्रेम से डील करते हैं कि या हम बदसूरती में डील कर रहे हैं आज भी। The world appears to be lost in its own ugliness. ये दुनिया है वो अपनी बदसूरती में फंसी हुई है। The way we deal with this world, जैसे हम इस दुनिया से वार्तालाप करते हैं या उसके बारे में बात करते the हैं, worldly people are ugly and they make the world also ugly. जो इस दुनिया के लोग हैं वे अपने आप को भी बुरा बना देते हैं, बदसूरत बना देते हैं और इस दुनिया को भी बदसूरत बना देते Lot हैं। of problems regarding environment बहुत सारी and समस्याएं आ जाती है ये वातावरण को लेकर भी। the world is becoming a place where it's very difficult for a person to survive. और ये दुनिया ऐसी जगह बन जाती है कि यहाँ पर रह नहीं सकता कोई। Did God make this world so ugly? क्या परमेश्वर ने इस दुनिया को बदसूरत बनाया है Or is it turning ugly day by day? और क्या ये अपने आप ही बदसूरत होता चला जा रहा है? See, we need to understand that the love of God is the primary requirement of every person. हमें इस चीज को समझ लेना है कि जो परमेश्वरीय प्रेम है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। The moment the love of God kickstarts in your life, जैसे ही परमेश्वर का प्रेम हमारी जिंदगियों में शुरू हो जाता है, we start dealing with beauty and love within ourselves and with other people and our God. हम सुंदरता से और प्रेम से हर एक चीज को डील करते हैं अपने अंदर, अपने लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ। My dear Christian believer brothers and मेरे sisters, प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, where are we standing? हम कहाँ खड़े हैं आज? There are so many people who confess that they belong to Jesus बहुत Christ, सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह के हैं, but they are displaying their own ugliness. They are after other people because of their ugliness, and they are never able to see the beauty of God. परंतु वो अपनी बदसूरती को लेकर ही लोगों के पीछे है और वे कभी भी यीशु में या परमेश्वर में अपनी सुंदरता को नहीं पा पाते। Just say I am beautiful. बस ये कह दो कि मैं सुंदर हूँ। Just say I am in love with my Jesus. बस ये कह दो कि मैं अपने यीशु से प्रेम करता हूँ। Just say that everything around me is beautiful. बस ये कह दो कि सब कुछ मेरे आसपास जो है वो सब कुछ सुंदर है। Just say that God's love is beautiful. बस ये कह दो कि परमेश्वर का प्रेम है वो सुंदर है। Just say that God's love is all powerful. बस ये कह दो कि परमेश्वर का प्रेम बहुत ही ज्यादा His सामर्थ्य love है। can remove all ugliness and create love everywhere, create beauty everywhere. उसकी सुंदरता हर जगह पर, उसका प्रेम हर जगह पर को सुंदर कर सकता है। God has that power of restoration. परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है हर चीज को रेस्टोर करने की। When He created the world, everything was good and beautiful. जब उसने इस दुनिया को बनाया वो सब कुछ सुंदर और अद्भुत बनाया उसने, But sin turned us ugly. पर जो पाप था उसने हमको गंदा कर दिया या बदसूरत कर दिया। But God has the capacity to restore that beauty in us. पर परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है कि वो हमें वापस से सुंदर बना दे। Dear brother and sister, are you talking beauty in your life? मेरे भाइयों और बहनों, क्या हम अपने जिंदगियों में खूबसूरती की बात करते हैं? Can you say that I am beautiful in the Lord? क्या आप कहते हो कि मैं सुंदर हूँ यीशु मसीह में? Can you say that my Lord is so beautiful? क्या आप कह सकते हो कि मेरा परमेश्वर सुंदर है? Can you say that I am in a heart-to-heart relationship with my क्या आप Jesus कह Christ सकते हो कि मेरा दिल से दिल का संबंध है मेरे यीशु मसीह से and I am dealing in love and beauty? और मैं प्रेम और सुंदरता में उससे डील कर रहा हूँ? Verse 2, दूसरा वचन, the beloved says, the bridegroom says, वो वधू कहती है, like a lily among thorns, so is my love among the daughters. जैसे सोसन
सुलगन फूल कटीले पेड़ों के बीच है, वैसे ही मेरे प्रिय युवतियों के बीच में है। The beloved says, the bridegroom says, my bride is beautiful. जो दुल्हा है वो दुल्हन को कहता है कि मेरी दुल्हन बहुत सुंदर है। I can see a beauty in my bride. मैं उसमें मेरी सुंदरता को देख लेता हूँ। This is beautiful and excellent. ये बहुत सुंदर और अद्भुत बात है। See, the Shulamite says, the bride says, I am beautiful. देखिए यहाँ वधू जो है वो शुलेमाइट है, वो ये कहती है कि मैं सुंदर हूँ। The bridegroom or the Lord says, yes, my bride is beautiful. वो दूल्हा और परमेश्वर ये कहता है कि मेरी दुल्हन सुंदर है। And see what the bride says about the bridegroom or the king. देखिए दुल्हन यहाँ पर दूल्हे के लिए क्या कहती है या वो राजा के लिए क्या कहती है। That's the main subject for today. वो हमारा मेन आज का सब्जेक्ट है। So the Shulamite says, the bride says, तो वो जो वधू है वो ये कहती है, like an apple tree among the trees of the woods, so is my beloved among the sons. जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। He is the most beautiful one. वो सबसे सुंदर है। He is incomparable. उसकी कोई तुलना नहीं है। I've given you a reference in the Bible where in Psalm 45, again the psalmist says that I have a beautiful song to sing, and that is about my Lord, that He is most beautiful. भजन संहिता 45 में हमने देखा कि मेरे स्वामी के लिए मेरे पास एक गीत है जो कि सबसे सुंदर है। And in that song we read that the psalmist says that I am a beautiful poet, I am an excellent poet because I have a good subject. क्योंकि हमने ये भी देखा था कि वो जो लेखक है वो ये कहता है कि मेरी जो मैंने जो लिखा है वो सबसे अद्भुत है, इसीलिए क्योंकि जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में लिख रहा हूँ वो बहुत ही अद्भुत है। You may please read it either in English or Hindi. 45 maybe verse 1 2. इंग्लिश या हिंदी में एक और दो वचन। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीव निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। Now the poet says that, the psalmist says that यहाँ पे जो भजनकार है वो ये कहते हैं there are many topics on which people write कि poetry. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके विषय में लोग लिखते हैं। Some write on the natural beauty. कुछ लिखते हैं सुंदरता के बारे They में, appreciate the nature. कुछ वातावरण के बारे में लिखते How हैं beautiful are the birds, how beautiful are the mountains, how beautiful are the rivers and rivulets. कि कितनी सुंदर है चिड़ियाएं, कितने सुंदर है पेड़, कितने सुंदर है नदियाँ। Some people write about human beings. कुछ लोग व्यक्तियों के बारे में लिखते हैं। A boy writes about a girl, she is beautiful. एक लड़का एक लड़की के बारे में लिखता है कि वो सुंदर है। A girl writes about her boy that he is beautiful. एक लड़की एक लड़के के बारे में लिखती है कि वो सुंदर है। A mother sings for her child that the child is very एक beautiful. माता अपने बच्चे के लिए लिखती है कि वो सुंदर है। There are so many subjects on which people write songs. बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में लोग कविताओं को लिखते हैं। In the history of mankind, पर मानव जाति के पूरे इतिहास में there has been a bhakti kal. एक भक्ति काल था When all the poetry and all the songs were written only for God and divine people. कुछ ऐसा समय था कि जब सारे गीत और सारे कविताएं जो थी वो परमेश्वर के लिए लिखी जाती थी। It was not well accepted if some boy is writing a poetry for a girl. It was not accepted in the society. यदि कोई लड़का किसी लड़की के लिए कुछ लिखता है तो समाज में इस चीज को ग्रहण नहीं किया जाता। So Tulsidas and Mirabai are not going to write about a boy or a girl. तो तुलसीदास और मीराबाई जो थे वो एक लड़के या लड़की के बारे में नहीं लिखते थे। They will write about their deity. वो अपने भगवान के बारे में लिखते थे। Now the psalmist says that out of these people who are writing for their gods, I have an excellent point in my heart. तो जो भजनकार कहता है कि ये जितने भी लोग लिख रहे हैं किसी भी विषय में, पर मेरे पास एक अद्भुत विषय है लिखने का। And the person that I am writing about is excellent, is incomparable to anybody, any deity or any person. और जिस व्यक्ति के बारे में मैं लिख रहा हूँ उसकी कोई तुलना नहीं है, वो इतना अद्भुत है। He is the most beautiful one. वो सबसे सुंदर है। If my heart overflows with my feelings for him, मेरा जो दिल है वो उसके प्रति फीलिंग से भरा हुआ है। he is the most beautiful among all men.
वो सब व्यक्तियों में सबसे ज्यादा सुंदर है। History has never seen a person like him. इतिहास ने उसके जैसा व्यक्ति नहीं देखा है। See, this is a prophetic song. देखो ये जो है ये भविष्यवाणी का And the psalmist is writing वचन है। about Jesus Christ who is about to come in this world. और जो भजनकार है वो यीशु के बारे में लिख रहा है जो इस दुनिया में आने वाला था। So the world need to understand that. तो दुनिया को इस बारे में समझ जाना है The whole entertainment industry today, कि जितनी भी मनोरंजन की बातें इस दुनिया में अभी हो रही हैं, they are writing on subjects which are not very important. They are creating stories where there are no stories. वो ऐसी बातों के बारे में लिख रहे हैं या ऐसी कहानियां बना रहे हैं जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। See, Jesus is the only subject and his story is the only story which is worth describing in this world. देखो यीशु ही है वो विषय है जो जिसके बारे में कहा जाना आज के दिन में बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। When will our industries, our creative people, our people who are creating new things, when will they turn to Jesus and say that this is the most beautiful subject? कब हमारे मनोरंजन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो यीशु के बारे में कहेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। You need the grace of the Holy Spirit for this. आपको पवित्र आत्मा के अनुग्रह की जरूरत है। Because Jesus said the world doesn't know me. क्योंकि यीशु ने कहा ये दुनिया के लोग मुझे नहीं जानते। And you will also not be known by the people of this world. और तुम भी नहीं जानोगे, तुमको भी इस दुनिया के लोग नहीं जानेंगे। They have hated me, they will hate you also. उन्होंने मुझसे भी नफरत की है और वो तुमसे भी नफरत करेंगे। But the moment a person turns to Jesus Christ, परंतु जैसे ही एक व्यक्ति यीशु की ओर मुड़ता है, he gets the best subject of his life. उसके पास उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट विषय उसे मिल जाता है। My lover is beautiful. मेरा जो प्रेमी है वो बहुत सुंदर है। And if you read the whole Psalm और 45, यदि आप भजन संहिता 45 को पूरे भजन को यदि there's आप a पढ़ते हैं, description of princesses and queens. तो वहाँ पर रानियों के बारे में कहा गया है And they are invited to love that lover. और वे उनको आमंत्रित किया जाता You है may कि read वे that if you can find that in the उस chapter. राजा से प्रेम करें। About, yes, verse 10 onwards. Please 10वां read. वचन, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। But that's all. See, you forget your family, you forget your people, you forget the background that you are coming from, and just love the lover. आप अपने परिवार को, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो सब चीजों को भूल जाते हैं और आप सिर्फ अपने प्रेमी से प्रेम करते He हैं। is not only your lover, but he is your Lord also. वो सिर्फ Pay आपका attention प्रेमी to the नहीं word है, there. पर वो आपका परमेश्वर है, वो आपका प्रभु है। उस Your वचन पर your ध्यान God दें। is your true lover. There can be no better lover than your God. आपका परमेश्वर है, वो आपका सच्चा प्रेमी है और उससे अच्छा प्रेमी आपके लिए कोई नहीं हो सकता। So whenever you talk about love for God, whenever you talk about a romance with God, it's always that worldly romance that is described there, like the princesses loving the king or the prince. यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रानियां हैं जो अपने प्रेम को दर्शाती हैं, वो एक दुनियावी प्रेम के बारे में बातें कर रही हैं। So when God wants to talk of His love, जब परमेश्वर हमसे अपने प्रेम के बारे में बातें करना चाहता so है, He takes the terms of love which are popular in this world, तो वो उन विषयों को लेता है जो इस दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। like a bride जैसे एक दुल्हन attracted towards a bridegroom, अपने दूल्हे के प्रति आकर्षित होती हुई, like the princess love the prince, जैसे एक राजकुमार एक राजकुमारी के प्रति आकर्षित होता है। and equally God's love for His people is described by the prince getting attracted towards the princess. जैसे एक राजकुमार एक राजकुमारी के प्रति आकर्षित होता है, उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों के प्रति आकर्षित होता है। It's never one-sided. कभी भी एक तरफा प्रेम नहीं है ये It's both the ways. ये दोनों तरफ का प्रेम है। God who created us also loves us. जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है वो भी हमसे प्रेम करता है। His heart also beats for His love for us. उसका हृदय हमारे लिए धड़कता है उसके हमारे प्रति प्रेम से। He is not a heartless creator. उसके पास हृदय नहीं है, ऐसा नहीं है। He loves us. वो हमसे प्रेम करता है And the love promotes or the love grows when both the parties love each और other. वो प्रेम बढ़ता है तब है जब दोनों तरफ से प्रेम होता है। You see, it cannot be one-sided. देखो एक तरफा प्रेम सही नहीं है। You see, God initiates that love. परमेश्वर उस प्रेम को जागृत करता है। He restores that lost love. जो प्रेम हमारे जीवन में खो गया था उसको वो हमारे जीवन में दे But देता He है। holds our hands and walks on the path of love, equally taking steps with us. वो हमारे हाथ को पकड़ता है और उस
प्रेम के पथ पर आगे बढ़ता है उसी तरह से जैसे हम चलते हैं। If we take one step, he also takes a यदि step. हम एक कदम को आगे बढ़ाएंगे तो वो भी एक कदम को आगे बढ़ाएगा। This is the love walk of God, ये हमारे परमेश्वर के साथ प्रेम की चाल है which we need to understand. जो हमें समझ जाना है। So the bride says that my lover is beautiful. तो यहाँ पर दुल्हन कहती है कि मेरा जो दूल्हा है वो सुंदर है। She is in love with the bridegroom. वो अपने दूल्हे से प्रेम में है। Love is a relationship. जो प्रेम है वो एक संबंध है। Love is mutuality. One both loving each other. प्रेम जो है वो आपस में प्रेम है, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। Love is never selfish. प्रेम कभी सेल्फिश नहीं होता। Love is always sacrificing. वो हमेशा सैक्रिफाइस करने वाला होता है। Love appreciates the ability of the other person. जो प्रेम है वो दूसरे की क्षमताओं को अप्रिशिएट करने वाला होता है। And love dedicates oneself to that ability. और जो प्रेम है वो अपने आप को डेडिकेट करने वाला होता है। Now the bride says, what qualities my bridegroom has? देखिए यहाँ पर जो दुल्हन है वो ये कहती है कि मेरे दूल्हे में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण It's हैं। worth describing. वो वर्णन करने लायक है। My lover is like an apple tree among the trees of the woods. मेरा जो प्रेमी है वो सेब के वृक्ष के समान है अन्य जंगल के वृक्षों के बीच में। So is my beloved among the sons. और वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। There are so many young people. बहुत सारे जवान लोग हैं, There are so many promising people in this world. बहुत सारे विश्वास योग्य लोग हैं, But my lover is incomparable. पर मेरा जो प्रेमी है उसकी कोई तुलना नहीं है। He is best and above all. और वो सबसे बेस्ट है और हर किसी से ऊंचा है। No person can ever be compared to him. और किसी भी व्यक्ति की तुलना उससे हम नहीं कर सकते। We read the Bible, हम वचन को पढ़ते हैं and Bible says that Jesus is exalted above each and every person and everything of this world. और बाइबल हमें बताती है कि मसीह को हर चीज और हर व्यक्ति से ऊंचा किया गया है। When we read the book of Philippians chapter 2 verses 1 to 11, जब हम फिलिपियों 2 उसके 1 और 11 से पढ़ते हैं, Bible says that his name is exalted above every name. वचन में यह कहा जाता है कि उसका नाम हर चीज से ऊंचा किया हुआ है। His name is above every name, not only on this earth but heaven, earth and the world below. उसका नाम सब नामों में ऊंचा किया गया है, ना केवल इस धरती पर स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे। Can there be any other name which can be compared with him? क्या और कोई दूसरा नाम ऐसा है जिसकी तुलना हम उस नाम से कर सकते हैं? We are lost people. Our names are not known by everybody on this earth even. हम भटके हुए लोग हैं और इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में कुछ व्यक्ति हमारे नामों को भी नहीं जानते हो। You go to any country आप किसी भी देश में चले जाइए and you ask everybody the name of the president or the prime minister. और आप किसी से भी पूछिए आपके प्रेसिडेंट या आपके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। Almost 25% of the people will not be able to tell the name of that person. 25% लोगों को उनका नाम तक नहीं पता होता है। Though he might be very popular among ऐसा them. हो सकता है कि वे उनमें बहुत ज्यादा प्रचलित हो। You see, there is not a single name in this world which could be known world over. एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पूरी दुनिया के हर एक व्यक्ति जानते हो। And very average people like us who stay in this world, और आम आदमी हमारे जैसे जो इस दुनिया में रहते हैं, even maybe people around maybe a vicinity of 1 kilometer from our place do not know us. और 1 किलोमीटर की दूरी में भी यदि कोई और व्यक्ति रहते हैं वो भी शायद हमें न जानते हो। They don't know us by name. वे हमें नाम से नहीं जानते होंगे। We don't have that identity. हमारे पास वो पहचान नहीं है। Now she says that her lover is beautiful among all men. वो कहती है कि उसका जो प्रेमी है वो सारे व्यक्तियों में ऊंचा है। There is nobody comparable to him. उसके तुल्य कोई और नहीं है। That's why the role of Jesus Christ is the best role in the life of any person. इसलिए यीशु मसीह का जो रोल है किसी की जिंदगी में वो सबसे ज्यादा The महत्वपूर्ण। relationship with Jesus Christ is best among all the relationships. यीशु मसीह के साथ जो हमारा संबंध है वो सारे संबंधों से ऊंचा है। There are so many relationships in this world. बहुत सारे हमारे संबंध है, बहुत सारे हमारे रिश्ते हैं इस दुनिया में। Even the best relationship that we know is of husband and wife. और हम जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संबंध है वो एक पति और पत्नी का होता है। But for husband and for the wife, the best relationship that they can have is the love with Jesus Christ. पर जो पति और पत्नी है उनके लिए जिस भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो संबंध है वो ये है कि उनका संबंध यीशु मसीह के साथ हो।
No husband can be better than Jesus Christ. कोई भी पति यीशु से बेहतर नहीं हो सकता, And no wife can be better than Jesus Christ. और कोई भी पत्नी यीशु से बेहतर नहीं हो So सकती। husbands and wives better love Jesus first and then love your और spouse. बेहतर ये होगा कि पति और पत्नी यीशु मसीह से पहले प्रेम करें और फिर अपने आपस में प्रेम करें। She says, I sat down in the shade of with great delight. वो कहती है कि मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ See, गई। he gives me a shelter. देखिए वो हमें एक शेल्टर देता है, वो हमें एक स्थान देता है। It's like you are wandering in a hot sun ऐसा है कि हम धूप में भटक रहे हैं and suddenly you find a big tree under which you take your shade. और अचानक से हम एक पेड़ को देखते हैं जहाँ पर हम छाया ले लेते हैं। She says, my lover is like that. वो कहती है कि मेरा प्रेमी उस तरह है। He is not only beautiful, वो ना केवल सुंदर है, he is not only incomparable, पर वो ना केवल ही उसकी कोई तुलना नहीं है, but he is so good that I can take my shelter under him. पर वो इतना अद्भुत है कि मैं उसकी शरण ले सकती हूँ। See, Bible says that if we come into the shadow of the Lord, देखिए वचन कहता है कि जब हम उसकी शरण ले लेते हैं, we get rest and peace. हमें शांति और आनंद मिल जाता है। Psalm 91 verse 1. Please read that. वचन संहिता 91 उसका पहला वचन पढ़ लीजिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना English पाएगा। also. Read in English. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. You see, we need a shelter from somebody. देखिए हमें एक शरण स्थान की जरूरत है। My lover is a shelter. मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो प्रेमी है, वो एक शरण स्थान है। At times, the ladies in this world expect their husbands to be their shelter. देखिए जो महिलाएं होती है वे ये अपेक्षा करती है कि उनके पति उनके लिए एक शरण स्थान हो, Because they are weaker, better halves. क्योंकि वे जो होती है वो कमजोर होती हैं। So they always need a shelter. वे हमेशा एक सहायक चाहती हैं। Her hope is always towards her husband. उनकी जो आशा होती है वे हम सदैव अपने पति की ओर होती है। The Shulamite says, देखिए यहाँ जो वधू है वो ये कहती है, my lover is beautiful. मेरा जो दुल्हा है, मेरा जो प्रेमी है वो बहुत सुंदर है। He is like a beautiful tree which cannot be compared with any other tree. वो उस वृक्ष के समान है जिसकी तुलना और किसी वृक्ष से हम कर ही नहीं सकते। He can offer me and I can seek shelter in him. और वो मुझे आमंत्रण देता है और मैं उसकी शरण में वो शेल्टर पाती हूँ। So the relationship of our relationship with Jesus is a matter of shelter under him. देखो हमारा जो संबंध है यीशु के साथ, वो उसकी शरण लेने का जो संबंध है वो संबंध है हमारा। We need to sit under his shade हमें उसकी शरण में बैठ जाना है so that we find a resting place. ताकि हम आराम पाए। She says, I'm not wandering here and there. वो कहती है मैं इधर उधर नहीं भटक रही, I found a place. क्योंकि मैंने एक जगह को पा लिया है And that place is so beautiful and so solacing that I can rest under that shade. और वो जगह इतनी सुंदर और इतनी शांति देने वाली है कि मैं उसमें अपने आराम को पाती हूँ। See, Jesus said, I give you my peace. देखो यीशु कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता My हूँ, own peace I give unto you. मेरी खुद की शांति मैं तुम्हें देता हूँ। I don't give the peace that the world says that it has. मैं वो शांति नहीं देता कि जो दुनिया कहती है मेरे पास है। My peace is different from the peace of this world. मेरी जो शांति है वो इस दुनिया की शांति से बहुत अलग है And nobody else can give you the peace that I can give और you. कोई वो शांति नहीं दे सकता जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ। And he says, I offer you this peace. और वो कहता है कि मैं तुम्हें ये शांति ऑफर करता हूँ। So when we sit in the shadow of that और master, जब हम उसकी शरण में बैठते हैं, we receive something which we cannot have from any other place. हम उस चीज को ले लेते हैं जो हम किसी और स्थान से नहीं पा सकते। It gives us a delight. वो हमें आनंद देता है, It's a great delight. वो हमें बहुत आनंद देता है। She says, when I sit in the shadow of that tree, I get great delight. वो कहती है कि जब मैं उसकी शरण में बैठती हूँ उस वृक्ष की, मुझे बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। Sitting peacefully and joyfully under the tree is a wonderful experience for her. बहुत शांति से और बहुत आनंद के साथ उस वृक्ष के नीचे बैठना उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। Then she says further, फिर वो आगे कहती है, and his fruit was sweet to my taste. और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। And his fruit is also available to me. देखिए उसका जो फल है वो भी उसके लिए अवेलेबल था, I can taste him उससे वो चख सकती थी because he is tasty.
क्योंकि वो टेस्टी है। See, we have so many relationships in this world देखिए हमारे बहुत सारे संबंध होते हैं इस दुनिया में, where we suffer so much of sorrow, deceit, and pain. जहाँ हमें धोखा मिलता है, हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। And the psalmist says, taste and see that the Lord is good. और भजनकार कहता है कि चख कर देख कि वो कितना भला है। Unless you taste him, you do not know how good he is. जब तक आप उसे चखेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि वो कितना भला है। See, coming closer to him is one thing, देखिए उसके पास आना एक अलग बात है, but to taste and testify that he is sweet is another. परंतु उसको चख कर जानना कि वो मीठा है वो एक अलग चीज है। There are many people in this world who come to the church thinking that they are coming closer to the Lord. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कलीसिया में आते हैं और वो यह सोचते हैं कि हम परमेश्वर से काफी करीबी में आ But रहे they हैं, have not opted neither the shadow of the Lord nor the taste of the Lord. परंतु पर ना ही उन्होंने उसकी शरण में आए हैं और ना ही उसने उसके फल को चखा है। That's why they are bruised with the sun. इसीलिए वो उस सूरज के कारण झुलस गए हैं। They need to come back to the Lord. उनको परमेश्वर के पास आ जाना है, Know him afresh. उसको जानिए एक नए तरीके Let से। us sing and say that I also have a beautiful subject to sing about. आइए आज हम गाएं और कहें कि मेरे पास भी वो विषय है जिसके बारे में मैं एक सुंदर गीत गा सकता No हूँ। subject of this world can replace that subject. ऐसा कोई भी विषय नहीं है इस दुनिया का जो उस विषय को से बेहतर हो। I am prompted to sing for my Christ, मैं लालायित हूँ अपने परमेश्वर के लिए गाने को, and I enjoy singing for और him मैं आनंद मनाती हूँ उसके लिए गाने को, because there is none like him. क्योंकि उसके तुल्य कोई और नहीं है। Verse 4. चौथा वचन, He brought me to the banqueting house, वह मुझे भोज के घर में ले आया and his banner over me was love. और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। See, coming into the banquet house is like a celebration. देखिए भोज के घर में आना एक सेलिब्रेशन के समान है, वहाँ कुछ सेलिब्रेशन हो See रहा है। how beautifully the bride is describing her experience with the bridegroom. देखिए वो वधू जो है वो अपने दूल्हे के बारे में उसका जो एक्सपीरियंस है उसको कितने अच्छी तरह से बता रही है I have known him, I have tasted him. कि मैं उसे जानती हूँ, मैंने उसे चखा है, He is worthy. वो योग्य है, He gives me peace, joy, satisfaction. वो मुझे शांति देता है, वो मुझे आनंद देता है, वो मुझे परिपूर्णता देता है, And he doesn't leave me there itself, और वो मुझे वहीं नहीं छोड़ देता, but he takes me to the house of celebration. पर वो मुझे एक आनंद के उत्सव के घर में लेकर जाता है, And he invites me to celebrate with him. और वो मुझे आमंत्रित करता है कि मैं उसके साथ आनंद को See, मनाऊं। most of the parables that Jesus spoke on this earth देखिए बहुत सारे दृष्टांत जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में कहे are of celebration. वो आनंद के हैं, वो उत्सव के हैं। Marriages and parties and celebrating together. जो शादियों का दृष्टांत है वो उत्सव के दृष्टांत है। There are no sorrowful parables in the Bible. हम दृष्टांतों में कहीं भी दुख भरी बातों को नहीं देखते। All the parables are joyful. जितने भी दृष्टांत हैं सारे आनंद से भरे हैं, All the promises of God are joyful. और सारी जो उसकी वाचाएं हैं वो आनंद से भरी हुई है। When once a person comes into the shadow of the Master and tastes his love, जब एक व्यक्ति उसकी शरण में आ जाता है और उसके प्रेम को चख लेता है, the next step is that he takes him into his celebration. तो आगे का कदम वो ये होता है कि वो अपने उत्सव में उसे लिए चलता है, Then you celebrate with the Lord. और फिर आप उसके साथ आनंद मनाते हो। What is that celebration? वो उत्सव क्या है? Rejoicing with the Lord, rejoicing with the God's people. कि परमेश्वर के साथ हम आनंद मनाएं और परमेश्वर के लोगों के साथ हम आनंद मनाएं। See, celebration takes you to a very different environment, a different world. देखो उत्सव जो है वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है। You forget about the sorrows of your life. आप इस दुनिया की बातों के बारे में या अपनी चिंताओं के बारे में भूल जाते हो। Till you are not in the shadow of the bridegroom, you are in your sorrows. जब तक आप दूल्हे की शरण में नहीं हो, आप अपने दुखों में ही हो। But the moment you come into his shadow, you lose your sorrows and also you enter into a kind of celebration. और जैसे ही आप उसकी शरण को ले लेते हो, आप अपने गमों को भूल जाते हो और आप उसके आनंद में प्रवेश कर लेते And हो। he puts a banner above me, और वो हमारे ऊपर एक झंडे को लगाता है, and that banner is of love. और वो जो झंडा है वो प्रेम का है। Perhaps our time is over. हमारा जो समय है वो पूरा हो रहा We है। hardly left with 5 minutes. हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का So समय है। next week we will continue from here. तो अगले हफ्ते हम इसी वचन से आगे His बढ़ेंगे। banner over me is of love.
उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता है वो प्रेम का है। This would be our subject for the next और ये week. हमारे लिए विषय होगा अगले हफ्ते के लिए। So let's thank and praise the Lord. आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। Thank Him for this word. इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। Praise Him. हम उसकी स्तुति करें। Accept His invitation. हम उसके आमंत्रण को आज स्वीकार करें। Come to a heart-to-heart relationship